Following are the details regarding three companies, A Limited, B Limited and C Limited. So these are the details provided. Internal rate of return, that is IRR. IRR is what? 15%, 5% and 10%. Right? For A Limited 15%, B Limited 5% and C Limited 10%. Cost of equity capital. Equity capitalization rate is also given. Cost of equity capital, that is 10% for A Limited, B Limited 10, C Limited 10. Okay. Same. Means cost of equity capital is constant for every company. Okay. EPS is also same. That is 8 rupees per share. Earning per share is what? 8. And you know that on the basis of earning only, we will going to declare the dividend as well as retained earnings will be there. On the basis of earning, what? The earning has been classified into two parts, because with the on the basis of earning only, you have what? Dividend payout and also retained earnings. अरे भाई अर्निंग होगा तभी अर्निंग में से आप डिविडेंड देगा और बाकी बचा कंपनी के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखेगा. दैट इज नोन एज व्हाट? रिटेन अर्निंग्स. समझा कि नहीं? सो सी नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. Calculate value of an equity share of each of these companies. What we have to calculate? Equity share means value of an equity share. See this. Calculate value of an equity shares of what beta? Each of these companies. Each of these companies as per which model? Yes, same. As per Walter's model. What beta? As per Walter's model. Now, as per Walter's model, when the dividend payout ratio is, we have to calculate value of an equity share as per Walter's model. When the dividend payout ratio is, see, when dividend payout ratio is, first A is what? 50%. When dividend payout ratio is 50%, so what will be the value of equity share? When dividend payout ratio is 75%, at that time, what will be the value of equity shares? Then C, when dividend payout ratio is 25%. Okay. And what conclusion do you draw? क्या conclusion आप निकालोगे इससे? What conclusion do you draw? So this is very important question for 15 marks. याद रखो सब लोग. क्या? This is very important question for what बेटा? 15 marks. So very important है, इसलिए अच्छे से देखना. Step by step हम लोग solve करेंगे. Easily, आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई घाई नहीं. बराबर है? तो देखो फॉर्मूला सब लोग याद रखो बस, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट फॉर्मूला ओनली. ओके, सो लेट्स बिगिन. देख लिया सम एक बार? बराबर है? अब ये सम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट. देखो पहले सॉल्व करेंगे, पहले ए लिमिटेड का पूरा कैलकुलेशन करेंगे. इसका ए लिमिटेड. ए लिमिटेड में 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो क्या होगा? 75 डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो क्या? एंड 25 में क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू डू फॉर ए लिमिटेड, राइट? आफ्टर दैट फॉर बी लिमिटेड सेम, फिर सी लिमिटेड सेम. ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ही सॉल्व करो ये सम, राइट? और देखो प्रैक्टिस में मैंने आप लोग को एकदम इजी सम दिया है. इसमें जो फर्स्ट सम किया था ना, फर्स्ट सम, उसके बेसिस पे देखो इधर नीचे सब दिया है. रिटेंशन रेशियो, आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर. छोटा सम है ये, ठीक है? एंड दिस इज द बिग सम, बिकॉज इधर 3 कंपनीज का आपको कैलकुलेट करना है, फिर कंक्लूजन भी देना है. उसमें तो कंक्लूजन भी नहीं देना है, वो एग्जाम का सम है, वो भी 8 मार्क्स, ये 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ही, राइट? छोटा सम, ये 15 मार्क्स का. ओके, चलो तो सब लोग अपना कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल जो भी है सब निकाल लो, नोटबुक. नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स बिगिन. देखो नॉर्मली that is computation of what? Market price under Walter's model. Then we have written the formula, that is P is equal to, P matlab market price of equity share is equal to D. D is what? Dividend per share plus E minus D. E is what? Earning per share minus D, dividend per share. R, rate of return on investment divided by K. K is what? Cost of equity capital or equity capitalization rate divided by K. K means equity capitalization rate. Now for A limited, first company is what? A limited. चलो सबसे पहला ए लिमिटेड में फर्स्ट व्हाट? व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%,
तीनों कैलकुलेट करना है, ए पार्ट ए बी सी. In A Limited, part A, B, C, same for B Limited, same for C Limited. And after that, finally, conclusion. So A, when what? When DP ratio, that is dividend payout ratio, when dividend payout ratio is what, beta? 50%. When dividend payout ratio is 50%. Okay. Right? Eh? So in such situation, what will be the market price? तो बेटा P is equal to formula आपने देखा है ऊपर, formula you have written here, that is P is equal to D plus E minus D, R upon K. So see, now what is D? अब D is dividend per share. तो D मतलब dividend per share किसके बेसिस पे आएगा? dividend payout ratio के बेसिस पे. And your dividend payout ratio is what? 50%. Okay? तो आ जाओ. तो क्या हो जाएगा? 50% of D is what? 50% of rupees. अब डिविडेंड किसके बेसिस पे आता है बेटा? अर्निंग्स के बेसिस पे. तो 50% ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग इज व्हाट? 8 रुपीज. सो 50% ऑफ रुपीज 8 प्लस, राइट, प्लस ई माइनस डी. चलो ई कितना है? ई अर्निंग पर शेयर 8 माइनस सेम डी इज व्हाट? 50% ऑफ 8. 50% ऑफ रुपीज 8 शो कर देने का एक बार, राइट? 50% of rupees 8 and then your what? Rate of return on investment. देखो क्वेश्चन में देखो कितना दिया है. सी क्वेश्चन आप लोग अपना निकाल लो, जो ग्रुप पे भेजा है मैंने, उसमें देखो कितना दिया है. यस, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 15% फॉर ए लिमिटेड के लिए. दिख रहा है रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न मतलब वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. यस, ठीक है. अभी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इधर क्या है? वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. हाँ, उसको एज्यूम करना है, याद रखो. दैट इज 15% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना दिया बेटा? 10%. मींस 15% इज आर एंड के, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज व्हाट बेटा? यस, 10%. तो आ जाओ. तो चलो 15% बेटा, 15% कैन बी रिटन एज व्हाट? 0.15. पता है ना? 15% can be written as what? 0.15. Okay, so 15% can be written as 0.15. पता ही है, नहीं पता रहेगा 15/100 कर लो, कैलसी में 0.15 आएगा. Divided by K is what? 10%, and 10% you all know that 10% can be written as 0.10. 0.10 divided by K. K कितना है? 0.10. ठीक है, चलो कैलकुलेट करो. 50% ऑफ 8 हो गया अपना क्या? 4 प्लस, पूरा शो कर देने का, याद रखो. नाउ 8 माइनस 50% ऑफ 8 इज 4, करेक्ट है, इनटू 0.15 डिवाइड बाय 0.10. क्या आ गया? 1.5. वेरी गुड. आई कैन सी द आंसर्स आल्सो. वेरी नाइस बेटा. डिवाइडेड बाय व्हाट? 0.10. ओके, चलो ये हो गया अपना. देन 4 प्लस, अभी क्या इधर? 8 माइनस 4 4, ठीक है, और ये इनटू कितना है अपना? 1.5 डिवाइड बाय 0.10. देखो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया इतना. 4 प्लस ये आ गया डायरेक्टली. फिर इधर तो पता ही है ना, फिर 1.5 इंटू 4. नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले ये करने का, उसके बाद प्लस माइनस, वो सब पता ही है. चलो आगे का स्टेप इज इक्वल टू 4 प्लस, अभी 4 इंटू 1.5 कितना हो गया आपका? 6. पीछे था अपना, देखो, राइट.
डिवाइड बाय 0.10, फिर 10 डिवाइड बाय 0.10, कितना आ गया आंसर? शाबाश, वेरी गुड, रुपीज 100. So P is rupees 100, right? P is rupees 100. Yes, very good. I can see the answers from many students. Well done. ये सब record रहेगा. Very nice, beta. Well done, everyone. ठीक है? It means what? When dividend payout ratio is 50%. What? When dividend payout ratio is what, beta? 50%, right? When dividend payout ratio is 50%, your market value of the your market value of equity share will be rupees 100. Okay, when dividend payout ratio is 50%, your market value of equity is 100. Okay, now when dividend payout ratio increase means dividend payout ratio increases, that is 75%. तो देखो मार्केट वैल्यू क्या होगा, तब देखते हैं क्या होगा, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है. सो दिस विल बी आवर कंक्लूजन. जो कंक्लूजन राइट करते टाइम पे ये सब हम लोग एनालिसिस करेंगे, राइट? तो चलो नेक्स्ट पार्ट. ये अपना हो गया कौन सा? ए हो गया. नाउ बी. बी सेम कंपनी ए लिमिटेड का ही कर रहे हैं हम लोग, तो ए लिमिटेड का बी. चलो तो क्या हो जाएगा? व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज व्हाट? 75%. When dividend payout ratio is what, beta? 75%. So at that time what will be the formula? सबको पता ही है, डायरेक्टली यूज करो. So P is equal to, देखा था ना इधर डायरेक्टली, P is equal to, आ जाओ. अब क्या हो जाएगा? सिर्फ इधर सबको पता है, everyone knows that what will be here. Now formula क्या है? पहले D. D means dividend. So dividend will be what? 75% of what? Rupees 8. $75% of rupees 8 plus E minus D. E is what? 8 minus 75% of rupees 8. स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं, करो मेरे साथ ही करो, स्टेप बाय स्टेप. देन हियर दैट योर क्या? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.15 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 0.10. वो सेम ही रहेगा ना, ए लिमिटेड का सेम ही रहेगा सब. बी लिमिटेड में चेंज होगा बस, सी लिमिटेड में फिर चेंज होगा, उनका जो रेट्स रहेगा वो सब क्वेश्चन में दिया है. सो 0.15 डिवाइड बाय 0.10 divided by what? 0.10. चलो now 75% of 8 आपका आ गया 6 plus 8 minus 75% of 8 is what? 6 and 0.15 upon 0.10 that is ये 1.5. इधर जो साइन होता है पता है ना सबको, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है. now divided by 0.10 बराबर है 0.10. Got it? Clear? चलो now calculate it. 6 plus 8 minus 6 क्या हो गया आपका? 2 into 1.5 into 1.5, right? चलो 1.5 divided by 0.10. Now next is equal to, करते जाओ, फिर क्या हो जाएगा? 6 plus 2 into 1.5 3 divided by 0.10. So 9 divided by 0.10. So 9 divided by 0.10 will come, answer will 90. Answer will be 90. So this is what your market price of an equity shares. Market price of an what, beta? Equity
shares. Okay, got it? Clear? So ये हो गया आपका market price of an equity share, that is 90. अब देखो बेटा, yes, I can see the answers from many students. Well done, everyone. Now see, beta, when dividend payout ratio was 50%, then your price, that is market value of equity share, is what? 100. And when dividend payout ratio is 75%, means increases, dividend payout ratio is increases. When your dividend payout ratio increases, then your market price of an equity share decreases. देख रहे हो कि नहीं? Dividend payout ratio increases, तो your market price of an equity shares decreases. Decrease हुआ है कि नहीं इधर? ये कंक्लूजन में आएगा ये पार्ट, बराबर है? देखा अंडर वोल्टर्स मॉडल यहाँ दिख रहा है. ये थियरी के हिसाब से जो प्रैक्टिकल किया है, इसमें क्या हो रहा है बेटा? When dividend payout ratio increases, your market price decreases. That's it. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. When dividend payout ratio is what? नेक्स्ट क्या है? 25% है ना, राइट? अब इसमें क्या हुआ? डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज हुआ है. अब इधर डिक्रीज हो रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% हो गया, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, इंक्रीज ही होगा ना. चाहिए तो करके देख लेते हैं इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, देखते हैं. चलो नाउ नेक्स्ट, ये अपना क्या हो गया बेटा? दिस इज व्हाट बी. नाउ सी पार्ट आ जाओ. सो सी, when dividend payout ratio, when dividend payout ratio is अभी कितना? 25%. When dividend payout ratio is what beta? 25%. When dividend payout ratio is 25%. Now P is equal to, chalo, P is equal to same. D is what? Dividend payout, that is 25% of rupees 8 plus अभी करो डायरेक्टली वही सेम. हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% ऑफ 8 हो गया, प्लस 8 माइनस 25% ऑफ 8, of 8, right? Then same 0.15 upon 0.10 divided by 0.10. Now is equal to, now 25% of 8 क्या है पता ही सबको? 2 plus 8 minus 2, then क्या हो गया? 8 minus 25% of 8 is what? 2, and here 1.5, right? कर लो उसको. ओके, चलो डिवाइडेड बाय 0.10. चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन. 2 plus 8 minus 2, 6 into 1.5 divided by 0.10. ओके, चलो नाउ कितना आ रहा है? यस, I can see the answers. Very good. So here आपका आ गया 2 plus 9 ना, right? Divide by 0.10. So your answer will be what? Rupees 110. So this is what? This is market value of equity shares in case of what?
when dividend payout ratio is 25%. When dividend payout ratio is what? 25%. Very good, everyone. Right? Okay. Now you can compare this, that if dividend payout ratio is more, your market value of equity share is less. When dividend payout ratio is higher, your market value of an equity share is lower. And when dividend payout ratio is lower, that is 25%, see, your market value, that is market value of an equity share is higher. Market value of an equity share is what beta? Higher. Okay? समझा? तो देख रहे हैं, मतलब इधर यही कंक्लूजन हो गया कि डिविडेंड ज्यादा दे रहा है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम हो रहा है, और डिविडेंड कम दे रहा है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ रहा है कि नहीं? मालूम पड़ा? और वॉल्टर का मॉडल किसके ऊपर फोकस करता है? अर्निंग्स के ऊपर, अर्निंग के बेसिस पे रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जितना रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगा उतना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ रहा है। देख रहे हैं, अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो कम होगा, इसका मतलब क्या? रिटेन अर्निंग्स ज्यादा होगा, राइट है? और भाई उसी के बेसिस पे देखो मार्केट प्राइस भी ज्यादा हुआ कि नहीं? डिविडेंड पे आउट रेशियो कम तो मार्केट प्राइस ज्यादा है ना? यही फंड है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कम है, इसका मतलब रिटेन अर्निंग ज्यादा है। रिटेन अर्निंग इज व्हाट? मोर, राइट? अल्टीमेटली योर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर, दैट्स इट। सम सॉल्व करना कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, इंटरप्रिटेशन करना बड़ी बात है, कंक्लूजन करना इज द मेन थिंग, याद रखना, ठीक है? कंक्लूड करना उसको। चलो, तो ये हो गया अपना, बराबर है बेटा? फॉर व्हाट? ए लिमिटेड। यस, वेरी गुड बेटा। नाउ आ जाओ, सेम वैसे स्टेप अपने को बी का सी का फॉलो करना है, तो चलो लेट्स डू इट फॉर बी लिमिटेड। अभी नेक्स्ट अपना आ जाएगा बी लिमिटेड। बी लिमिटेड, चलो बेटा अभी बी लिमिटेड में वही सेम, सबसे पहले व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो, बी लिमिटेड का करेगा सेम स्टेप, सेम प्रोसीजर। फर्स्ट क्या है? ए में व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%। व्हेन, अब ये कंपनी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ रहा है तो मार्केट प्राइस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है कि सेम है, क्या हो रहा है देखेंगे। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो, when dividend payout ratio is what? First case, when dividend payout ratio is what beta? 50%. Okay, so what will be the market price? So P is equal to, आ जाओ फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ध्यान देना, अभी आपको डेटा, यू हैव टू सी द डेटा अवेलेबल फॉर बी लिमिट, रिमेंबर इट। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट व्हाट विल बी हियर? 50%। If dividend payout ratio is 50% means 50% of earning per share, सबको पता है, that is what common for every company, A limited, B limited और C limited। 50% of 8 plus earning, that is 8 minus 50% of 8, right? Now अभी इधर ध्यान देना जरा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बी लिमिटेड का देखो, फॉर बी लिमिटेड, फॉर व्हाट? बी लिमिटेड कितना है? 5% है देखो क्वेश्चन में दिख रहा है 5%, एंड यू नो दैट 5% कैन बी रिटन एज व्हाट? 0.05। सो 5% मीन्स 0.05 divided by K is what? 10%. Cost of equity capital is common for everyone, every company. So that is 0.10, ठीक है? ओके, IRR यही है ना? देख लो, इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% ही है ना? कि कुछ चेंज है? बता देना, बराबर है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो डिवाइडेड बाय सेम, डिवाइडेड बाय K, दैट इज 0.10। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले 50% ऑफ 8 आ गया आपका 4 प्लस 8 माइनस 50% ऑफ 8, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.05
डिवाइड बाय 0.1, तो कितना होता है ये 0.5 ना, 0.5, ओके, डिवाइडेड बाय 0.10. नाउ नेक्स्ट 4 प्लस 8 माइनस 4, बताइए सबको, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.10. Okay, now in next part 4 plus 0.5 into 4, that is 2. Aja. So 4 plus 2 divided by 0.10. So here it will be 6 divided by 0.10. Finally, your answer will be what? 60. Right? So this 60 is what? Your P. That is market price of an equity share. Okay? This is what beta your P. Yes. Well done. So this is what, when dividend payout ratio is what? 50%. Now second one B. Aja B karte hain. B में क्या है? When dividend payout ratio is what? 75%. When dividend payout ratio is 75%. When dividend payout ratio is what beta? 75%. So P is equal to, aja, use it. So first 75% of it. 75% of 8 plus 8 minus 75% of 8. Then 0.05 upon 0. कितना है? 10% ना, right? Divided by 0.10. अच्छा, first of all, everyone put your attendance. Everyone put your attendance first. सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो पहले. Now 75% of it, calculate it. कितना हो गया? 6 हो गया, प्लस 8 minus 6, right? 8 minus what बेटा? 6. और इधर 0.05 upon 0.10, that is 0.5 divided by 0.10 is equal to 6. 6 plus 2 into 0.5 divided by 0.10. Yes, I can see the answer. Very good. Correct है. 70 answer आएगा. Right. So, आजा next. Is equal to 6 plus 1 divided by 0.10. Right? 0.10. तो ये हो गया अपना 7 डिवाइड बाय 0.10. फाइनली आंसर आ गया आपका कितना? 70. That is what market price of an equity shares. Market price of an equity share is what? 70. Okay? आ गया. देखो पहले कितना था मार्केट प्राइस? 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो पे मार्केट प्राइस अपना कितना है? 60. और अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% हो गया तो मार्केट प्राइस हो गया 70. देखो ये केस में बी लिमिटेड में क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है उधर का, ए का. इधर डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज हुआ तो मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ है. दिख रहा है ना? ये कंक्लूजन याद रखने का, ये सब लिखना पड़ेगा अपने को. ठीक है? इन केस ऑफ बी लिमिटेड व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीजेस, योर मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर आल्सो इंक्रीजेस. इसका मतलब अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज होगा तो मार्केट प्राइस भी डिक्रीज होगा.
इधर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। तो चलो अभी बचा गया अपना इसका सी पार्ट। चलो सी पार्ट क्या है? व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज व्हाट? 25%। चलो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, विद कंक्लूजन भी करना है, मेन कंक्लूजन लिखना, ठीक है? तो कंक्लूजन कैसे लिखना एग्जाम में बताऊंगा मैं नेक्स्ट में, ठीक है? तो आप इसको इंटरप्रेट करके कंक्लूजन लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट ये सब पूरा मेरे साथ ही करो, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, बड़ा समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो है कुछ नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल कैलकुलेशन, बस कंक्लूजन पे ध्यान देना। चलो इसको इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट। सो P इज इक्वल टू सेम 25%, राइट है? पहले 25% ऑफ व्हाट?